Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. And today I'm going to discuss all the online assessment question that I was asked while I was giving my online assessment on Indigo. And yes, right now you'll have to clear your online assessment to go for an walk-in interview. It's completely true, and I also got to know this recently that I appeared for an online interview because I want to apply in April. So unless and until I clear my online assessment, I can't go for a walk-in interview. So that's why. And there were few things that I overlooked while giving my answers, but I like to know you that beforehand so that you won't repeat the same mistake that I did during my interview. The first thing you have to keep in mind is you have to speak at least 75 seconds. While the timestamps will be running, there will be one horizontal line and you will have to touch at least that line. And after reading every question, once the video is started, at the below you will get an instruction where it is written. You have to speak at least 75 seconds for each question. So keep that thing in your mind, okay? And you will be given 10 seconds to read each question, but 3 seconds until and unless the video starts. So prepare your answer during that time, and I believe 10 seconds is more than enough to read an answer and frame your answer also. So do it calmly and be confident. It's not something that we can't do. We'll do it. It might take some time for us to reach or clear that round, but definitely we are going to do this sometime, hopefully. Now I'm going to share all the questions that was asked with me. Okay, so first question, I'll see, as you guys already know or might know, there would be 10 questions, 9 in English, 1 in Hindi. So the first question that was asked with me is, what cultural misunderstanding have you witnessed and how was it solved? आप कोई भी ऐसा कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपने फेस किया हो, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से कोई कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या आप कुछ किसी और चीज़ में बिलीव करते हो और सामने वाला किसी और चीज़ में बिलीव करता है, इसी वजह से आप में कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो और आपने इसको कैसे रिजॉल्व किया, ये था क्वेश्चन पहला. दूसरा क्वेश्चन था, वन फूड आइटम यू बाय ऑफ्टन फ्रॉम लोकल स्टोर और मार्केट एंड व्हाट वाज इट. कोई भी ऐसा फूड आइटम जो कि आप बहुत ही ऑफ्टन बाई करते हो बाहर से, और ये कौन सा फूड आइटम है और आप पर्टिकुलरली कहाँ से बाई करते हो इसके बारे में. और आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हो आप इसे क्यों बाई करते हो, मे बी हेल्थ बेनिफिट दिखा देना, या ये आपका फेवरेट है टेस्ट वाइज और आपको इसका कलर टेक्सचर क्या पसंद है वो आप मेंशन कर देना, ठीक है, पर एटलीस्ट 75 सेकेंड तक बोलना. Third question was, tell me about your favorite actor or singer and why. Why you like that person? What personality trait you like and what you learn from them. ये है. Fourth question was, tell me about one of the value you follow at your home and also at your workplace. Any value, either it being discipline, either prioritizing things that you think or believe is needed much more attention than any other work, और आपका कोई भी ऐसा वैल्यू या रूल जो आप फॉलो करते हो, सेम रूल घर पे भी फॉलो करते हो और वर्क प्लेस पे भी फॉलो करते हो. आई थिंक ये फोर्थ था ना. ओके, सो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज गुड कस्टमर सर्विस मीन टू यू. आई गेस यू ऑल नो कस्टमर सर्विस इज़ अ डेफिनेशन, उसका एक डेफिनेशन होगा, ठीक है. कस्टमर सर्विस क्या है, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, बट देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन गुड कस्टमर सर्विस and just customer service. Customer service, you are just providing your customer, but good customer service is when you are putting yourself in your customer's shoes and trying to respect them, value them and respect their time. This is what good customer service is. So you'll have to answer in this way. The sixth question was, how do you handle multiple tasks at the same time. आप कैसे आप बहुत सारा काम एक ही टाइम पे करते हो, आप कैसे खुद को ऑर्गेनाइज रखते हो, कैसे खुद को डिसिप्लिन रखते हो और कैसे फोकस करते हो हर टास्क पे पर्टिकुलरली, और सारा टास्क एक टाइम पे अच्छे से कर पाते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो. द सेवन क्वेश्चन वॉज, हाउ वुड यू से नो पोलाइटली एट वर्क वाइल मेंटेनिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. तो आप कैसे किसी को ना बोलोगे, कोई आपसे पूछ रहा है कि आप मेरी ये हेल्प कर दो, बट
आप नहीं कर सकते वो हेल्प, चाहे वो टाइम बाउंडेशन है या आपको नहीं पता है, तो आप नो कैसे बोलोगे? या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है खुद का, तो आप कैसे किसी को हेल्प करोगे? तो आप कैसे किसी सामने वाले को नो बोलोगे जो आपसे हेल्प मांग रहा है? बट आप एक पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बना के रखोगे। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं उन्हें डायरेक्टली मना नहीं करूँगी, पहले मैं उनका कंसर्न सुनूँगी और फिर मैं उन्हें बोलूँ, अपना रीज़न बताऊँगी, मैं इस वजह से आपको हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं उनको असिस्ट भी कर दूँगी कोई ऐसे पर्सन के पास जो उनका हेल्प कर पाए जेन्युइनली, या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उनको उस क्वेश्चन का दे दूँगी ताकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इवन तो मैं उनको नो बोल रही हूँ, और एक हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे। The eighth question was one skill that you are learning currently and why and from where. Any skill, crocheting, painting, communication, customer service skill, anything, any skill you are learning currently and from where you are learning and why you are learning, you'll have to see in this. The a sorry, the ninth question is why do you think verifying our information you got from social media is important and how will you do that? If you get any information, या अगर आपको कोई भी न्यूज़ सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, जैसे कि अभी बहुत ही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब चल रही है इस वर्ल्ड की, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रहा है, तो आप उस पर बिलीव करने से पहले क्यों इम्पोर्टेंट समझते हो कि उसको वेरीफाई करना चाहिए? और अगर आप उसको वेरीफाई करते हो तो आप उसको कहाँ से वेरीफाई करोगे? गूगल से, यूट्यूब से, या किसी नॉलेजेबल पर्सन से? ये ऐसा आंसर इसमें आपको देना है, ठीक है। और अब 10th क्वेश्चन आता है जो कि बहुत इजी था, बहुत लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं, आपने बहुत जगह सुना भी होगा कि ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। वो है, आप अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ कैसे वीकेंड स्पेंड करते हैं? ये हिंदी का क्वेश्चन था। आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कैसे वीकेंड स्पेंड करें? या तो आप मूवी जाते हैं, या तो आप खाना खाते हैं घर पे, साथ में खाना बनाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कोई गेम खेलते हैं, ऐसा सा, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो मेरे ऑनलाइन असेसमेंट में पूछा गया था। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं नर्वस उतनी नहीं थी, बट मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शॉर्ट दिया था। मैं 75 सेकेंड तो छोड़ो, मैंने शायद 30 सेकेंड के अराउंड ही उसको ख़त्म कर दिया था उसके आंसर को, और मैं बस ऐसे करके बैठी हुई थी पूरा टाइम, क्योंकि मैंने वो इंस्ट्रक्शन देखे ही नहीं थे। तो मैं इस वजह से भी रिजेक्ट हो सकती हूँ, और अगर इस बार मैं रिजेक्ट हो गई तो 3 मंथ का शायद कूलिंग पीरियड है, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, किसी लड़की ने दिया था मुझे। तो इस वजह से मैं थोड़ी परेशान सी भी हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं एंड मुझे तब तक के लिए कोई जॉब ढूंढना पड़ेगा जब तक कि मैं यहाँ स्टे कर सकूँ और फिर से रीअप्लाई कर सकूँ और कैबिन क्रू बन सकूँ, ट्रेनिंग में जा सकूँ। इसके लिए तो मेरे पास तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है, क्योंकि मेरे मास्टर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। मेरे पेरेंट्स भी ऑब्वियसली मुझे बोलेंगे कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडी देन व्हाई यू आर देयर स्टिल, यू शुड कम बैक। So I don't want to go. I want to appear for an interview, and genuinely want to be a cabin crew. I have waited 6 to 7 years for this, and I don't want anything to ruin this. But it's okay. Let's see what happens. We'll figure that out, and we'll see what we can do to comprehend or to get this job. I'll try some part time. I'll do work somewhere until and unless I become a cabin crew. So yeah, that's what my current plan is, because many things is changing right now and we don't know if it is going to continue in this way only or it is going to go back to the normal. Let's hope for the best. Yeah, but we are going to figure this out. Bye bye, see you in my next video. If you want any information or anything you particularly want to know from my side, then do comment and I'll make my next video on that as soon as possible.